हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 7। आज हमारा है सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। याद कीजिए, हमने क्या रेक्टिफायर के बारे में हमने चर्चा करना शुरू किया था, और इसमें हमने पहला हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है। हमने प्रीवियस क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर ये हमने पढ़ लिया। इसका ग्राफ हमने देखा था, इसका एफिशिएंसी के बारे में हमने जाना था, है ना। आप मेन मेंटलिस्ट सेमीकंडक्टर 06 सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, so let's start with the topic again. What we have now today, that is full wave rectifier. What we will discuss now, that is full wave rectifier, है ना। हमने आपसे कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, बट इसको अपन यूज नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेट 40% ही होता है, और ये एक अच्छा डील नहीं है इसका यूज करना। That's why we will discuss here full wave rectifier, and we will also try to cover the filter circuit. If you remember that day I said you कि after passing the AC current from the rectifier, what we got after passing the AC current from rectifier, this was the graph, this was the output we obtained, है ना, from half wave rectifier, है ना। After passing the AC current from the rectifier, half wave rectifier, this was the current we obtained, right? But in this output you can see clearly that we have what, AC component also as well as DC component also. So we need to eliminate, we need to filter the AC component from the output, and therefore that thing we use here filter circuit, that we will discuss today. Okay, and I said you कि in DC in half wave rectifier we will not use the filter circuit because that's not the practical use we have, but in full wave rectifier we will discuss that. Okay, so let's start with the full wave rectifier. My name is Sanjeev Kumar Jha and your channel is Mean Mentalist, MEAN Mentalist, Mean Mentalist. Okay, find out, and let's start with the full wave rectifier. Again, one more thing for the CBSE, this question is for the CBSE board purpose. Already I said you rectifier is worth of 5-star mark. Rectifier is worth of 5-star marks. That means it will be asked maximum for 3 marks in the board examination. Okay, and mandatorily it will be asked 100% surety with this question, 100% surety with this question of the rectifier for 3 marks. Okay, it can be lesser, but maximum it will be 3 marks. So let's start with the rectifier. First thing what we will do, what for it is used, the use of rectifier is to convert the AC current into DC current. The use of rectifier is what? It's to convert the AC current into DC current, the same as half wave rectifier. Okay, so now construction. See the diagram we are drawing here. Construction. Understand the construction very carefully. That day in previous class in the half wave rectifier, this thing I have already explained, so I am not going to explain it once again. What is the use of this one? What is this called? This is transformer. This is used to convert this is used to increase the voltage of the input current, input AC current. Whatever current we are giving here, this is AC input, and we can increase or decrease. We can increase or decrease the input current by using a transformer. That's why before changing the AC into DC, we are using the transformer, so that later on we will not need to, and later on after converting into DC we cannot change the potential or the value of current, and the magnitude cannot be changed. Okay, now here in the circuit diagram, if you remember, in the half wave rectifier there was one diode here. I am naming it as D1. This is P and this is N. You already know this one. But in full wave rectifier, what we will do, we will use two diode. Here we will use what? 2 diode. Okay, and here we will use 2 diode. This is D1 and we will name it as D2. Okay, चलिए, हमने वहां पे D1 एक रेक्टिफायर एक डायोड यूज किया था, यहाँ हम 2 डायोड यूज करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड 2 यूज करेंगे फुल वेव में। फिर यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलते हैं, डायग्राम बनाना सीख लीजिए, वेरी इजी, वेरी बुक्स वगैरह में जरा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप यहाँ से बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। इसको मैं ऐसा ज्वाइन कर देता हूँ, है ना, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे मैं सेंट्रल टैपिंग करता हूँ। इसको यहाँ से मैं एक वायर लेता हूँ, कनेक्शन लेता हूँ, इसको अपन बोलते हैं टैपिंग, है ना। टैपिंग का मतलब क्या होता है? टैपिंग का मतलब होता है कि जैसे आप देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक पाइप से, यहाँ से सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पाइप, ओके, एंड वाटर इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर।
अगर मुझे बीच में भी पानी चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नल लगा दूंगा, तो पानी यहाँ से यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं टैपिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? टैपिंग। अब एक चीज देखिए, अगर वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, इसको ध्यान से, यहाँ से अगर फ्लो कर रहा है, देखिए मैं डायग्राम के साथ बताता हूँ। ये सपोज कीजिए एक पाइपलाइन है और इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है ना। ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अब मुझे बीच में कहीं पानी चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टैप लगा दिया, एक नल लगा दिया, तो मुझे यहां से भी पानी मिलेगा, आगे भी जाएगा और यहां से भी मुझे पानी मिलेगा ना। तो इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। इसको हमने क्या कह दिया? टैपिंग कह दिया, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए कि अगर वाटर का फ्लो यहां से स्टार्ट होकर इधर को जा रहा था, दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होगा। That means this point will always be at the lower potential with respect to this A point. Either water is coming from the B terminal or it is coming from the A terminal. This tapping will be always at the lower potential respective to either B or A. इधर से पानी जाए या इधर से पानी जाए, दोनों ही केस में इधर से पानी आएगा तो ये हायर पोटेंशियल, ये टैप मेरा लोअर पोटेंशियल पे। ए से पानी आएगा तो ए हमारा कैसा? हायर पोटेंशियल पे, और ये टैप कैसा? हमारा लोअर पोटेंशियल पे। तो अंडर एनी सर्कमस्टांस, चाहे करंट इधर से आए चाहे करंट इधर से आए, हमारा टैपिंग जो होगा, इसको अगर मैं टी नेम कर दूं, टी, तो टैपिंग जो हमारा होगा वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होगा। दैट इज मैंडेटरी थिंग, राइट? ओके, वापस आते हैं डायग्राम पे। यहां से हमने टैपिंग किया, एक रेसिस्टेंस लगा दिया है ना, इसका नाम हमने लोड रेसिस्टेंस बोलना है। और यहां से मैं एक सर्किट ये लेता हूं और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैंने एक सर्किट लिया और इसका नाम मैंने ए दिया, इस सर्किट पॉइंट का नाम बी देते हैं। चलिए, ओके, ए और बी कर दिया। और यहां से अपने को आउटपुट लेना है, यहां से अपने को क्या लेना है? आउटपुट लेना है। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। थोड़ा सा भी मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स भी यहां से आपको डायग्राम में कट नहीं किया जा सकता है। दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। अब बुक्स वगैरह में आप यहां से एक और यहां से ये वायर आके यहां हमने निकाल के, वो निकालते रहिए, कंफ्यूज होइए, इट्स योर चॉइस, बट दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। 100% ट्रू, 100% करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई शक नहीं रखे इस बात में, ठीक है। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया है, यहां तक हमारा डायग्राम इसका फुल वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट हो गया है। जरा सा नेमिंग कर लेते हैं। तो चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पी, इसका नाम लेते हैं क्यू, आर, ये टी हमने दे दिया है, ए भी दे दिया है, एस, पी क्यू आर एस, इसका नाम यू दे देते हैं। चलिए ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया, हमने नेमिंग कर लिया है। अब ये हमारा क्या है? एसी इनपुट। यहां से इनपुट क्या जा रहा है? ये एसी इनपुट, दिस इज व्हाट इनपुट वी हैव। यहां से हमारा एसी इनपुट जा रहा है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है। एक बार फिर से, हमने ये ट्रांसफार्मर का काम आपको पता है क्या होता है। हमने दो डायोड लगाया, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता था, यहां अपन ने दो डायोड लगाया है, D1 एंड D2, ठीक है। समझेंगे इसका क्या यूज है, कैसे काम करेगा। फिर यहां से हमारा ये सर्किट हमने ज्वाइन कर दिया, बीच से यहां किसी पॉइंट से, इसके किसी एक पॉइंट से हमने क्या किया? एक टैपिंग कर ली। टैपिंग करने से बेनिफिट क्या हुआ कि चाहे करंट इधर से जाए चाहे करंट इधर से जाए, हमारा ये टैपिंग हमेशा कैसा होगा? लोअर पोटेंशियल पे होगा। और अपने को हमने इस टैपिंग वाले वायर में हमने क्या किया? इसका नाम लोड रेसिस्टेंस RL, याद है लोड रेसिस्टेंस का काम क्या था? सर्किट को शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करना है। और यहां से अपन आउटपुट ले लेंगे इस RL के अक्रॉस से, ठीक है। ये हमारा आउटपुट सर्किट होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये काम कैसे करता है समझिए। सबसे पहले तो याद है आपको, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल कैसे इसका वर्किंग पे बात करते थे? फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट करते हैं पहले हाफ साइकिल में। तो पहले हाफ साइकिल में इनपुट क्या है? मैं यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इनपुट के लिए, या फिर मैं चलिए यहां ड्रॉ कर लेता हूं। अच्छा, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, पहले डायग्राम में मेरा पहला हाफ साइकिल में इनपुट क्या है? दिस इज द इनपुट वी हैव, राइट? फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल दिस इज द इनपुट, रिमेंबर। चलिए, तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट आया तो क्या होगा? फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट इस P को, P इज एट पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल, देन डेफिनेटली दिस व्हाट U विल बी व्हाट? दिस U विल बी एट नेगेटिव एंड U इज एट नेगेटिव टर्मिनल। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, दैट इज नॉट द कंसर्न। किसी को मान सकते हैं, करंट जैसा आएगा होता है ना, पहले ये पॉजिटिव फिर अगली साइकिल भी नेगेटिव हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज द अल्टरनेट करंट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? अल्टरनेट करंट। ओके, लेट्स सी। तो अगर ये मेरा पहले हाफ साइकिल में P अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे है और U जो हमारा है, U अगर हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे है, तो देखिए हमारा डायोड D1 कैसा है। D1 में P किससे जुड़ा है? ये P और ये N,
ये P और ये N। तो D1 हमारा कैसा है, पॉजिटिव, P से पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो P से P पॉजिटिव से N नेगेटिव से, तो D1 कैसा हो गया, फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। और D2 कैसा हो गया, रिवर्स बाइज्ड हो गया, क्योंकि देखिए P इसका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। P किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। पहले हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अभी हम, तो P किससे है, नेगेटिव से, और यहां पे D1 का P किससे है, पॉजिटिव से। सो वी कैन से नेगेटिव, देन D1 इज फॉरवर्ड बाइज्ड, D1 इज व्हाट, फॉरवर्ड बाइज्ड, एंड D2 क्या लिखेंगे हम लोग, एंड D2 इज रिवर्स बाइज्ड। D2 कैसा हो गया हमारा, रिवर्स बाइज्ड हो गया। बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए। अब हम जानते हैं कि अगर फॉरवर्ड बाइज्ड जो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होता है वो करंट को अलाउ करता है, और रिवर्स बाइज्ड में हमारा क्या होता था, डिप्लेशन लेयर बड़ा होता जाता था, तो करंट को अलाउ नहीं करता है। दैट्स व्हाई D2 विल नॉट अलाउ द करंट टू पास, D2 विल नॉट अलाउ द करंट टू पास। तो D2 ने क्या किया, ये सर्किट को कट कर दिया है। अगर यहां से करंट नहीं जाएगा तो ये सर्किट क्लोज हो गया। भैया सर्किट इसने क्या किया, कट कर दिया है, यहां से करंट नहीं जा सकता है ना। ये सर्किट अगर यहां से करंट नहीं जाएगा तो यहां से हमारा करंट चला चला चला, अब यहां से आगे तो जा नहीं सकता, क्योंकि सर्किट यहां पे कैसा है, क्लोज नहीं है, और करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। और यहां पे हमारा सर्किट कैसा हो गया, ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि इस D2 डायोड ने करंट को पास होने नहीं देना है इसने, है कि नहीं है। तो करंट दूसरा पाथ चूज करेगा। कैसा पाथ चूज करेगा, ये PQR, ये B जाएगा, B से A जाएगा, और फिर A से T हमारा लूप पूरा हो जाएगा, है कि नहीं है। रिवर्स समझ में आया ये चीज फिर से, क्योंकि यहां से हमारा करंट चलेगा तो D1 चला, Q गया, R गया, R के बाद करंट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। करंट ने R से S की तरफ जाने की कोशिश की, बट क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सर्किट हमारा कैसा हो चुका है, ये सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो चुका है, क्योंकि D2 तो है करंट को पास ही नहीं होने देगा, रिवर्स बाइजिंग हो गया D2 का। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो गया, यहां से हमारा करंट पास नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा करंट कैसा, R के बाद कहां जाएगा, S पे या B पे, ऑब्वियसली B की तरफ जाएगा। ठीक है, देन डायरेक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट, देन फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, देखिए फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, मैं लिख देता हूं, करंट इज फ्रॉम P D1 Q, आई होप देख रहे हैं आप, P D1 Q, फिर इसके बाद R के बाद B के बाद A, और A के बाद T, यही लूप हमारा पूरा हो गया, यही तो चाहिए। तो अब यहां से हमारे आउटपुट सर्किट में करंट किधर से किधर है, आउटपुट में देखिए B to A जा रहा है करंट, राइट। आउटपुट में कैसा, पहले B में गया फिर A में गया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट B to A। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब सेकंड में करते हैं, फॉर सेकंड हाफ साइकिल, फॉर सेकंड हाफ साइकिल। अच्छा, तो अब इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा यहां से, अगर मैं, ये इनपुट था हमारा पहले हाफ साइकिल का, और आउटपुट की बात करें तो कैसा आएगा भाई, जैसा करंट आया वैसा गया है B से A की तरफ, तो मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B से A, नो प्रॉब्लम, B से A आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब फॉर सेकेंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल पूरा हो गया, अब सेकेंड हाफ साइकिल में बात करेंगे। तो सेकेंड हाफ साइकिल में फिर से मुझे इनपुट कैसा मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज द इनपुट, दिस इज द इनपुट, राइट। क्योंकि अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, एसी का यही तो प्रॉपर्टी है कि आफ्टर ईच हाफ साइकिल द डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, आफ्टर ईच हाफ साइकिल द डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, दैट्स व्हाई नाउ दिस P विल गो फॉर नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस U विल गो फॉर पॉजिटिव टर्मिनल। U कैसा चला हो जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और P कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल P is at negative terminal, negative, and U is at पॉजिटिव, है कि नहीं है। ये नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका कोई वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ना। ये अपने को B से A ये ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां से काम हो गया हमारे पास किसमें, P इज एट नेगेटिव एंड U इज एट व्हाट, पॉजिटिव। सो अब कैसा हो गया नाउ, सो अब कौन रिवर्स बाइज हो गया, देखिए P नेगेटिव से, सो D1 इज रिवर्स बाइज एंड D2 इज फॉरवर्ड बाइज, राइट। सो D1 इज रिवर्स बाइज्ड and D2 is forward biased, D2 is forward biased, ठीक है। अब D2 हमारा forward biased हो गया, तो अब कौन करंट को पास नहीं करेगा, D1 हमारा करंट को अलाउ नहीं करेगा और D2 करंट को अलाउ करेगा। तो पाथ ऑफ करंट कैसा होगा, पाथ ऑफ करंट जो होगा, देखिए अब ये हायर पोटेंशियल पे तो करंट तो इधर से चलेगा, राइट। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे करंट ऐसा चलेगा। देखिए करंट यहाँ T तक पहुंच क्यों रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ से ग्रेजुअली कम होता होगा। मैंने बताया था ना, टैपिंग में हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है, तो करंट अगर यहाँ नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ तो पहुंचने का रास्ता है ना, और करंट हायर से लोअर जाने का उसको कंडीशन है,
है कि नहीं? तो यहां नहीं पहुंचा तो यहां पहुंच गया, क्योंकि यहां का रास्ता हमने बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया कि ये रिवर्स वाइज हो गया, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। तो करंट यहां से चलता हुआ पहले कहां जाएगा? यू से चला है, यू से D2 जाएगा, D2 से S जाएगा, S से R जाएगा। अब R के बाद इसके पास जाने के लिए एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो ये कौन सा रास्ता चूज करेगा? R से Q जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन है, और सर्किट ओपन होगा तो करंट वहां से फ्लो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई द करंट विल नॉट पास टुवर्ड्स Q, इधर की तरफ नहीं जाएगा। तो करंट किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। तो R से कहां पहुंचेगा? B, B से A एंड A से T, एंड T इज ऑलवेज एट द लोअर पोटेंशियल, T इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल, राइट? सो द पाथ ऑफ करंट क्या हो जाएगा? चलिए मैं आप होप कि आपने इसको पॉज करके लिख लीजिए। ये ऊपर वाला पार्ट जो है मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? इसको मैं रब कर रहा हूं फर्स्ट हाफ साइकिल के केस को, और एक कंसेप्ट वहां से याद, इसको भी रब कर दिया क्या? ओके, लेट्स सी। ये इसका रास्ता पाथ लिख के रख लेते हैं अपन। इसका पाथ कैसा था? फर्स्ट हाफ साइकिल पाथ कैसा था पहले हाफ साइकिल में? कहां लिख ले यहां लिख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हाफ साइकिल पाथ ऑफ करंट क्या था? ये काम है। पाथ ऑफ करंट इज इक्वल टू कैसा था हमारा? P से पाथ ऑफ करंट P D1 Q R B A T, and this was the direction of current B to A in output circuit, right? Okay, so अब यहाँ पे क्या होगा? 4 सेकेंड हाफ साइकिल पाथ ऑफ करंट कैसा होगा? 4 सेकेंड, है ना? यहाँ से आगे चलते हैं तो क्या होगा? 4 सेकेंड पाथ ऑफ करंट कैसा हो जाएगा? पाथ ऑफ करंट कैसा हो गया हमारा? देखिए, U से चलना शुरू किया तो पाथ ऑफ करंट इज U, D2, देख रहे हैं? U से D2, D2 से S, S से R, एंड R से कहां जाएगा? B एंड B से A और A से T। तो आउटपुट में करंट किधर से किधर गया? B से A की तरफ जा रहा है, देख लीजिए। आउटपुट में किधर? B से A जा रहा है हमारा, यही तो आउटपुट सर्किट है, ठीक है? तो अब आते हैं यहां पे अब बात आती है कि ग्राफ में बात करते हैं। पहले हाफ साइकिल में करंट कहां से कहां था? B से A। पहले हाफ साइकिल में कहां से कहां था? B से A, तो हमने ये डायरेक्शन लिया था, गुड। सेकेंड हाफ साइकिल में करंट किधर से किधर है? अभी भी B से A है, राइट? अभी भी B से A है, तो अभी भी करंट का कैसा होगा? ऐसा ही होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा? है ना? तो देखिए क्या हो गया, इनपुट कैसा था, हमने क्या चेंज कर दिया। ये था कैसा, पहले मल्टी डायरेक्शनल था, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा था, बट यहां क्या हो गया, यूनि डायरेक्शनल। कैसा हो गया मेरा यहां पे, ये यूनि डायरेक्शनल। और ये किसकी प्रॉपर्टी है यूनि डायरेक्शनल, ये हमारे डीसी करंट की प्रॉपर्टी है। यूनि डायरेक्शनल किसकी प्रॉपर्टी, डीसी करंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने एसी को भी डीसी में चेंज कर लिया, है ना। लेकिन क्या ये फाइनली डीसी में बदल गया है, नहीं, अभी ये फाइनली डीसी में नहीं बदला है। क्यों, क्योंकि डीसी करंट हमने आपसे क्या बताया था, डीसी करंट हमने आपसे बताया था कि यूनि डायरेक्शनल एंड प्लस कांस्टेंट दोनों समझाया था, याद है। यूनि डायरेक्शनल तो होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट करंट भी होना चाहिए। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो अभी इसमें क्या है हमारे पास, एसी कंपोनेंट भी है, और उस एसी कंपोनेंट को अपने को हटाना पड़ेगा। ये एक बार समझ में आ गया कैसे करते हैं। दो डायोड यूज करेंगे, पहले हाफ साइकिल में एक डायोड फॉरवर्ड वाइज, दूसरा रिवर्स वाइज, तो करंट का डायरेक्शन ये। दूसरे हाफ साइकिल में ये रिवर्स वाइज, ये फॉरवर्ड वाइज, करंट का डायरेक्शन ये। बट दोनों ही केस में आउटपुट सर्किट में करंट बी से ए ही जा रहा है, दैट्स व्हाई करंट इज व्हाट, यूनि डायरेक्शनल। दैट्स व्हाई करंट इज व्हाट, यूनि डायरेक्शनल। दैट इज द प्रॉपर्टी। गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो अब जो मेरे पास आउटपुट आया है, तो इस आउटपुट में हम यहीं से आउटपुट नहीं लेते हैं, क्योंकि आउटपुट में हमारा सिर्फ डीसी करंट, ये डीसी करंट नहीं आया है। ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारा, ये अभी डीसी कंपोनेंट है, इसमें कंप्लीट डीसी नहीं बना है। कंप्लीट डीसी कब बनेगा, कांस्टेंट करंट के साथ साथ, यूनि डायरेक्शन के साथ साथ कांस्टेंट भी होना चाहिए। बट अभी ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर सर्किट यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फिल्टर सर्किट यूज करेंगे। तो इसको आपने कॉपी कर लिया, पॉज कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। और फिल्टर सर्किट समझते हैं यहां तक। चलिए, अब फिल्टर सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। चलिए, अब फिल्टर सर्किट की बात कर लेते हैं, क्या होता है यहां से फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट जहां पे हमने ये आउटपुट लिया था ना, यहां आउटपुट के साथ क्या किया हमने, यहां पे फिल्टर सर्किट का डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने क्या किया, ये एक आया और ये एक लगा लीजिए बॉक्स। इस बॉक्स का नाम क्या है, रेक्टिफायर। क्या नाम है हमारा, ये रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, वही है ये पूरा, वो पूरा डिवाइस है ये। अब रेक्टिफायर से आगे चलते हैं। रेक्टिफायर से करंट निकल गया, रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होकर कैसा मिला, ऐसा मिल चुका है अपने को।
और यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर, और यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, वही लोड रेसिस्टेंस था, सर्किट को क्या करेगा, शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करेगा। और ये हम यहां से लेंगे आउटपुट, यहां से हम क्या लेंगे, आउटपुट। समझिए सर्किट क्या है, ये रेक्टिफायर मतलब जो हमने अभी लगाया था ना, ये फिल्टर सर्किट हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर के बाद यूज करते हैं, है ना। रेक्टिफायर से आउटपुट जो मिलता है वो जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलेगा वो कैपेसिटर का इनपुट होगा, ठीक है चीज। रेक्टिफायर का आउटपुट कैपेसिटर का मतलब ये फिल्टर सर्किट का इनपुट होगा। ये सर्किट हमारा कैसा है, इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। ये है हमारा फिल्टर सर्किट, ठीक है। ये तो रेक्टिफायर हमने पहले बना लिया है ना। तो अब समझते हैं इसका काम कैसा होता है। ये हमारा एक कैपेसिटर है, क्या है हमारा, ये कैपेसिटर हमने लगा दिया है, चलिए कैपेसिटर, और ये एक हमने लोड रेसिस्टेंस लगा दिया है, और यहां से फिर हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो अब समझिए कैसा फिल्टर सर्किट काम करता है। जब ये आउटपुट था मेरा किसका, रेक्टिफायर का, और रेक्टिफायर का आउटपुट फिल्टर सर्किट के लिए कैसा बनेगा, इनपुट। तो जब ये इसमें जाता है ना, तो यहां से जो बाहर आता है फिल्टर्ड जो होता है वो अपने को कांस्टेंट करंट आता है, ये आता है अपने को रिजल्टेंट में, आउटपुट ये मिलेगा अपने को। थोड़ा सा वेरिएशन समझेंगे अभी होगा कि ये ऐसा आउटपुट होता है। कैसे काम करता है फिल्टर सर्किट, समझिए। मान लेते हैं, लेट एज्यूम, सपोज कीजिए कि यहां से जो आउटपुट मिला ना, वो मान लेते हैं कितने का, मान लेते हैं 2 वोल्ट का था। लेट एज्यूम, मान लेते हैं 2 वोल्ट का आउटपुट मिला, कहां से, रेक्टिफायर से निकल के। कितने का मिला अपने को, 2 वोल्ट का मैक्सिमम आउटपुट मिल गया, ठीक है। तो जब यहां से 2 वोल्ट जाएगा, तो चूंकि कैपेसिटर और आउटपुट सर्किट जो है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आप देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों का। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का पोटेंशियल और वही यहां का पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, हम जानते हैं इस बात को। तो अगर 2 वोल्ट का आउटपुट यहां से मिल रहा है तो यहां भी 2 वोल्ट होगा, यहां भी 2 वोल्ट और यहां भी 2 वोल्ट। तो हमको आउटपुट में कैसा मिलेगा, आउटपुट में हमको 2 वोल्ट का पोटेंशियल मिल गया, ये 2 वोल्ट मिल गया मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहां से 2 वोल्ट पे हो गया चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या हो गया, जब यहां से 2 वोल्ट गया तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर यहां से चार्ज हो गया। जब रेक्टिफायर से ये निकला ना, तो इसने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कितने वोल्ट से, 2 वोल्ट से, क्योंकि कैपेसिटर उसी से चार्ज होता है। जितना करंट आप जितना पोटेंशियल उसको देंगे उतने से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो ये 2 वोल्ट से चार्ज हो गया और आउटपुट भी कैसा मिल गया अपने को, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 2 वोल्ट मिल गया। ओके, अब क्या हुआ कि अब करंट यहां से देखिए, इसका जो आउटपुट पोटेंशियल है यहां से वो इनपुट, इसमें जो इनपुट पोटेंशियल है वो ड्रॉप होने लग गया, कम होने लग गया। 2 वोल्ट से कितना हो गया, 1.9 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ऐसा कम होएगा। देखिए कम होते होते कहां तक पहुंचेगा, ये 0 तक पहुंचेगा। उसी सेम टाइम में देखिए अब क्या हो रहा है, यहां से, अब समझना इस डायग्राम को, यहां से आया 2 वोल्ट का, हमको आउटपुट मिल गया कैसा, 2 वोल्ट। कैसा मिल गया अपने को, 2 वोल्ट। अब जैसे ही करंट यहां से कम होने लग जाएगा या इनपुट पोटेंशियल कम होने लग जाएगा यहां वाला, तो अब कैपेसिटर मेरा 2 वोल्ट से चार्ज हो गया था। तो दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज द सेल और एज द बैटरी फॉर द आउटपुट सर्किट। अब जो करंट जैसे 1.9 जो करंट ये कैपेसिटर क्या करेगा, सर्किट के पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा। दिस विल एक्ट एज द बैटरी और द सेल, ये बैटरी की तरह काम करेगा आउटपुट सर्किट के लिए, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है ना 2 वोल्ट से, ये प्लस माइनस ये 2 वोल्ट से चार्ज हो चुका है ना। अब यहां से अगर मैं इसको हटा भी दूं, इस सर्किट को ब्रेक भी कर दूं, स्टिल वी हैव व्हाट, अ बैटरी इन द सर्किट। अभी भी हमको आउटपुट करंट मिलेगा, है कि नहीं है। वही काम हुआ, यहां से जब 0 हुआ तो हमको क्या मिला, फिर भी आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 वोल्ट मिलता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आएगा कि कैपेसिटर जब करंट सप्लाई करेगा या पोटेंशियल सप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, तो थोड़ा सा इसका ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज होकर 1.9 वोल्ट पे आया, 1.8 वोल्ट पे आया, जब तक इतना कम हुआ कि फिर से अगला साइकिल, फिर से नेक्स्ट साइकिल एंटर कर गया, है कि नहीं है। फिर से नेक्स्ट साइकिल जब एंटर किया तो फिर से कैपेसिटर 2 वोल्ट से चार्ज। तो क्या हो गया हमारे पास फाइनली यहां पे सर्किट में आउटपुट बता रहा हूं कि सबसे पहले तो अपने को 2 वोल्ट मिल गया। फिर क्या हो गया, इनपुट मेरा 0 हो चुका है, यहां से इनपुट कैसा हो चुका है, देखिए 0 हो चुका है, तो करंट कम होगा, लेकिन कैपेसिटर ने करंट को मेंटेन कर लिया, आउटपुट सर्किट को मेंटेन किया, तो लेकिन मेंटेन किया, अभी भी 2 वोल्ट मेंटेन्ड है। अब क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग गया। तो डिस्चार्ज होने से थोड़ा सा कम हुआ। जैसे ही 1.8 पे आया कि तुरंत अगला साइकिल एंटर कर गया।
जैसे ही अगला साइकिल एंटर किया फिर से कैपेसिटर चार्ज हो गया 2 वोल्ट से, और आउटपुट सर्किट कैसा, फिर से 2 वोल्ट, फिर से 2 वोल्ट ये राइज कर जाएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा। तो ये थोड़ा सा फ्लक्च ऐसा होता रहेगा कंटिन्यूअसली, है कि नहीं है? ये साइकिल ऐसे इनपुट आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और यहां से इस तरीके से, समझ में आया ये चीज? तो ये क्या होगा, हमारा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, थोड़ा सा बहुत माइनर फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि देखिए इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है ना, 1.9 भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, ये इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। जब तक वो 0.0001 वोल्ट कम होगा इतने में तो दूसरा साइकिल आ जाएगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है इसी का ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर का ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी डबल हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या होता है, अच्छा अभी समझा देता हूं इस बात को भी। तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ही माइनर फॉल होता है आउटपुट सर्किट में, लेकिन दैट इज सो माइनर कि नेग्लेक्टेड अपन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बाद में इसको भी अपन जीनर डायोड लगा के रिकवर कर लेंगे, बट नाउ दिस इज द फाइनल आउटपुट, दिस इज व्हाट फाइनल आउटपुट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द फिल्टर सर्किट। ये इसका काम समझ में आ गया, कैसे काम करता है फिल्टर सर्किट। यहां से इनपुट गया, जितना वोल्ट से गया, जितना वोल्ट इनपुट यहां से आउटपुट मिला है उतना भाई चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इधर भी आउटपुट सर्किट मिल जाएगा। उसी से मेरा कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, जैसे ही इनपुट यहां पे 0 होगा कि कैपेसिटर सर्किट को संभाल लेगा और सर्किट में सेम कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई करता रहेगा। फिर जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा कि अगला साइकिल इंटर कर जाएगा, अगला साइकिल हमको उसको पास करेगा। इस तरीके से हमारा फिल्टर सर्किट काम करेगा। तो इसमें क्या क्या था, एक एसी कंपोनेंट और एक डीसी कंपोनेंट। तो हमने यहां से क्या किया, एसी कंपोनेंट क्या था इसका, फ्लक्चुएशन, तो हमने यहां से फ्लक्चुएशन रिमूव कर दिया। इस फिल्टर सर्किट ने क्या किया, इस फ्लक्चुएशन को रिमूव कर दिया और हमको एक कांस्टेंट करंट दिया। नाउ दिस इज यूनिडायरेक्शनल कांस्टेंट करंट, नाउ दिस इज व्हाट यूनिडायरेक्शनल कांस्टेंट करंट, है ना, कांस्टेंट करंट। सो दिस इज व्हाट डीसी, दिस इज व्हाट डीसी। एंड यही तो हमारा एम था कि एसी को डीसी में बदलना है ना। तो बिना फिल्टर सर्किट का काम सिर्फ रेक्टिफायर से काम नहीं होता है, फिल्टर सर्किट को भी जोड़ना पड़ता है। और सीबीएसई एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ फिल्टर सर्किट भी पूछा गया है, कोई रेक्टिफायर नहीं, सिर्फ फिल्टर सर्किट समझा दीजिए क्या होता है विद डायग्राम। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, गॉट इट। अब एक बात साथ करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, कितना साइकिल पर सेकंड में आ रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है एसी का इक्वल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर से हाफ वेव आउटपुट। हाफ वेव से जो आउटपुट मिलता है, हाफ वेव से जो आउटपुट मिलता है वो इक्वल किसके होता है, इनपुट एसी के। किसके होता है हमारा ये, इनपुट एसी के। फुल वेव क्या, सेकंड में क्या होता है, इनपुट एसी। अच्छा फुल वेव से जो आउटपुट होता है, फुल वेव आउटपुट जो होता है, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, रेक्टिफाइड लिख देते हैं, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, ये 2 टाइम्स होता है इनपुट एसी के, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट एसी। व्हाई, देखिए हाफ वेव में क्या था, यहां से एक साइकिल मिला, ये खाली था, फिर दूसरा मिला, और इनपुट कैसा था, ये था, ये एक साइकिल, यही तो था एक साइकिल। यहां पे एक साइकिल पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या था, कितने टाइम के बाद रिपीटेशन हो रहा है, जितना टाइम इसको इतना होने में लग रहा है उतने टाइम में यहां तक पहुंच रहा है। लेकिन एसी में क्या हो रहा है, देखिए एसी में ये हुआ और ये हुआ, इतने ही टाइम में फिर से सेम चीज रिपीट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डबल हुआ कि नहीं हुआ। जितने टाइम में ये एक साइकिल पूरा कर रहा है इतने टाइम में 2 साइकिल पूरा कर रहा है। तो एसी का फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर से जो फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट आता है उसका फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी से 2 टाइम्स होता है। याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफाइड जो होता है हमारा वो इनपुट एसी से 2 टाइम्स होता है। मैं फुल वेव रेक्टिफाइड बोल रहा हूं, फिल्टर्ड नहीं बोल रहा हूं। एसी से 2 टाइम्स होता है और ये हाफ वेव से कैसा होता है, इक्वल टू एसी। इतनी सी बात याद रखेंगे, ये हमारा है। और इसका एफिशिएंसी फुल वेव का अप्रोक्सीमेट 80% होता है। इसका एफिशिएंसी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 80%। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, नीटा इक्वल टू कि हमारा क्या है, आउटपुट डीसी डिवाइड बाई इनपुट एसी। यही तो होता है हमारा नीटा एफिशिएंसी। ये दोनों में सेम होता है, हमने हाफ वेव में पढ़ा था। तो ये बात हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे, हमें उसको सॉल्व आउट करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। और हम आपको थैंक्स भी करेंगे इस काम के लिए कि आपने कोई प्रॉब्लम पूछा, हमारा वीडियोस देखा, आपने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा है, हम श्योर उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मन लगाकर, मेन मेंटलिस्ट के साथ, और मेंटलिस्ट बनिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।